Are you planning to settle in the capital of West Coast of Karnataka? If so, here is a ready-to-build property adjacent to Mangaluru city amidst lush green, which indeed is the right place to have a happy home. Just 20 minutes at a distance of 10 kilometers from the heart of the city, located at Neer Marga, is one of the most prominent developing area of Mangaluru city limits. A peace and serene place, surely be loved by your dear ones. Surrounded by natural trees and valleys, the 13 cents plot of solid terrain is the destination for construction of your everlasting dream home. Various educational institutions, hospitals, malls, historical and religious places at close vicinity will be additional booster for your comfortable and holistic lifestyle. The ready-to-sale plot, located near Manipal University's proposed campus, will assure you good ROI if you are thinking in terms of investment. Contact +9181 971 43675 or 8217 729859. Good morning, viewers. Welcome to the show Amazing Stories, Village TV special. Our guest today is Rakesh Kumar Pandey, founder and national president of Anika Educational Health and Welfare Trust India from Azamgarh. Rakesh Pandey, sir, is a former NRI, non-resident Indian, aircraft maintenance engineer, masters in psychology, MBA from IB, and having 20 years of international industrial experience and counselor, and also member of Indian School Psychology Association. Rakesh Kumar Pandey Sirji, welcome to the show Village TV special by News Karnataka. धन्यवाद sir. Thank you for coming to our Village TV special episode 2 of the second series. Rakesh Kumar ji, what are your first thoughts about this program, the Village TV special Amazing Stories? Karnataka News is now globally presenting the village, and whatever is happening inside the village, core India, is going to be shown to the other world, where we feel proud how the Indian villages are going to be changed. So I like this initiative by the Village TV Karnataka and hope we all support this news channel so that everyone connect and spread the words. Thank you, Sirji. Aircraft engineering to social development. That is our tagline today. Aircraft engineering to social development. How is this transformation? जी धन्यवाद. देखिए ये बहुत बढ़िया प्रश्न है क्योंकि अक्सर लोग मुझसे ये प्रश्न पूछते हैं कि आपने इंजीनियरिंग छोड़कर सोशल वर्क में आए. जब हम एयरक्राफ्ट में थे तो हम ऑलरेडी सोशल वर्क कर रहे थे, क्योंकि इंजीनियरिंग एक अपने आप में एक सोशल वर्क है जिसमें आप पैसेंजर्स की हेल्प करते हैं, आप अपनी ड्यूटी के अलावा भी अपने कोलीग्स की हेल्प करते हैं. तो ऑलरेडी हम वहाँ काम कर रहे थे, लेकिन जब चीज़ें आपको लगती हैं कि पर्यावरण आपकी दूषित हो रहा है, एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पानी पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और वहाँ पे बैठ के सिर्फ दो ही चीज़ हो सकती है, या तो आप उसको देखें और बर्दाश्त करें या जिम्मेदारी लें और बदलें. तो मैंने ये जिम्मेदारी ली और इसको बदलने के लिए अब जो है अपना प्रोफेशनल फील्ड का जो टेक्निकली एक्सपर्ट है वो सोशल वर्क में लाके लोगों की हेल्प कर रहा हूँ जी, इसलिए मैं इस फील्ड में आ गया. Very nice. It's wonderful to know that aircraft engineering is used in social development. Whatever techniques that you have with you as a aircraft maintenance engineer, that can be plowed into social development. Wonderful. Now tell us about your organization, Anika Educational Health and Welfare Trust India. How was this, when did you start it? And since your organization is serving multiple fields, tell us more about this, Anika. अनिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट एक संस्था है
जो विश्व मुक्त भारत पे काम कर रही है। ये जल, जमीन, वायु और विचारों को जहर मुक्त करने के लिए अपनी एक कोशिश यात्रा कर रही है। दैट कोशिश यात्रा में हम लोगों को पर्यावरण, जल संरक्षण, जल संचय और बारिश के माध्यम से लोगों को जोड़ा जा रहा है। इसमें हम लोग लीगल एडवाइस भी करते हैं, पर्यावरण से संबंधित कार्य करते हैं और गौशालाओं के माध्यम से ही हम विश्व मुक्त को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम किसानों को जो है प्राकृतिक खेती, यानी श्री सुभाष पालेकर जी का एक प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम जो है जल, जमीन और वायु को विचार मुक्त, जहर मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम गौशालाओं पे जीवामृत, घन जीवामृत बनाते हैं और उसको हम लोगों ने जो वृक्षारोपण कर रहे हैं उसमें वो खाद यूज करते हैं, किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा जो आसपास के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे स्कूल, गांव के लोग, सरकारी अथॉरिटीज, उन सबको हम ट्रेनिंग देते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरीके से हम रसायन मुक्त खेती करके जल, जमीन और वायु को बचा सकते हैं। स्कूलों के माध्यम से हम नई जनरेशन में इस चीज से जुड़ रहे हैं। वहां पे भी ईच वन टीच वन कॉन्सेप्ट के हम लोग बच्चों के जो थॉट्स हैं उसको हम पॉइजन फ्री कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव हम लोग काफी सालों से कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बूस्ट समझें तो लास्ट 2 ईयर से इसमें बहुत तेजी से हमने काम किया है। लास्ट वीडियो में जैसा हमने डिस्कस किया था उसको लेते हुए अब तक हमने करीब जो है 25,000 पेड़ लगा चुके हैं। इस साल केवल इस महीने में 7,500 पेड़ लगाया है। हमारा लास्ट स्कूल था, उसमें भी हमने 350 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे पास अभी 80 बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा कई बीज हम लोग फेंक रहे हैं और मोर देन अभी तक 1200 विलेजेस में हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम कर चुके हैं और कंटिन्यू आंकड़े हैं हमारे पास में, जिनको हम लगातार, हमारी अलग अलग टीम्स हैं जो अलग अलग आश्रमों से कर रहे हैं। टोटल हमारे पास में 5 आश्रम है जहाँ से अलग अलग तरीके से लोगों को जोड़ा जा रहा है। जी सर। Okay. Very good to hear that you are into so many village programs and you are going to the villages to encourage people and tell them about you said Vish Mukt Bharat, which is poison free India, wherein you want to educate the people not to pollute the air, water, and Soil. the entire soil. I mean, the entire nature itself. Right. How precious that we have to, enrich our nature so that it can be poison free and beneficial to the generations to come. Wonderful work, Rakesh ji, what you're doing in the villages of Azamgarh. Very, very good to know that. And I hope you reach all the villages of Uttar Pradesh in the due course of time. Wonderful work that you are doing. And we are happy as Village TV to join with you. And we already said you are our ambassador for Village TV in Uttar Pradesh. Now, let's take a break and we'll come back after the break. Attention! Here are 2 properties located just adjacent to NH73 at Melkar BC Road, which is the place most appropriate to realize the dream of having the home for a happy living. Just 30-kilometer drive from Mangaluru, the west coast capital of Karnataka, 2 layouts of 20 cents and 19 cents respectively, with village ambience, are ready to build with clear documents. The hill opposite to these properties are reserved for the proposed university campus of a prestigious Mangalore-based institution, giving you indeed the right investment opportunities in future. Pious religious centers around will give you a spiritual feel amid modern lifestyle. On-time healthcare facilities and educational opportunities are available within reach. Contact 91-81971-43675 or 821-77-29859. My fourth question to you, what made you to promote natural farming and how relevant it is when it comes to chemical pesticide which give instant growth and result?
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि व्हाई कम टू द नेचुरल फार्मिंग। जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग जल, जमीन, वायु और विचारों को जहर मुक्त करने का काम कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले जो प्रोग्राम शुरू किया, उसमें हम लोगों ने जब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो हमने पाया कि उसके जो माँ बाप हैं, दे आर नॉट साइकोलॉजिकली साउंड, क्योंकि वो जिस एनवायरनमेंट में है उनके पास में आइडिया नहीं है कि कैसे हम जो है प्रकृति को बचाएं और कैसे उनकी इनकम बढ़े। उसकी सोच वो बच्चों पे डालते थे। हमने जब माँ बाप पे काम किया तो हमने पाया कि इनके पास इकोनॉमिकली दे आर वेरी वीक, वो हर वक्त पैसे के बारे में सोचते हैं। तो हमें लगा कि पैसे क्यों जा रहे हैं, ऐसा हमने सोचने पे स्टडी किया। व्हेन वी कम्स टू नो कि इनका जो पैसा है वो खर्च बहुत ज्यादा है। दोज हु आर इन्वॉल्व इन फार्मिंग, उनका बहुत ज्यादा पैसा खेती में जा रहा है, बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत जा रहा है। तब हम लोग पद्मश्री श्री सुभाष पालेकर जी के संपर्क में आए, लोक भारती लखनऊ के माध्यम से। मैं उनके साथ में जुड़ा, मैंने इसका अध्ययन किया, वी लर्न लॉट। तो मुझे ये लगा कि जो मैं सोच रहा हूँ ये चीज तो ऑलरेडी सुभाष पालेकर जी कर रहे हैं, व्हाई नॉट वी प्रमोट हिम। तो मैंने उनसे सीखा और सीखने के बाद हमने जो नेचुरल फार्मिंग है वो गौ आधारित प्राकृतिक खेती है, यानी इसके अंदर मिनिमम टीलेज है, मिनिमम वाटर है, मिनिमम आपका लेबर है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। आप हर चीज अपने खेत में केवल एक देशी गाय, यानी यू फ्रॉम क्या बोलते हैं उसको, देसी गांव जो है उससे आप उस गोबर एंड गौमूत्र से आप जीवामृत और घन जीवामृत बनाकर अपने खेतों में डालते हैं। तो आपको गाय से दूध मिलता है, घी मिलता है, गोबर मिलता है, गौमूत्र मिलता है। इससे आपका पॉल्यूशन जीरो हो जाता है। जैसे आपका पॉल्यूशन जीरो होगा तो ना तो आपकी जमीन दूषित होगी, ना आपका पानी दूषित होगा और ना ही आपका हवा दूषित होगा। ये जब तीनों चीजें शुद्ध हो जाती हैं तो जैसा हमारा पानी होगा, जैसा हमारा अन्न होगा, वैसे ही हमारे विचार होंगे जब हम उसको खाते हैं। तो ये जब मैंने ये सब चीज जाना तो इसलिए मेरे को नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने पे हम लोग लग गए और इसीलिए हमने एक गौशाला ली, क्योंकि गौशाला एक ऐसी जहां पे हमारी गाय जो है वो भटक रही है। अब उन गाय की उपयोगिता अगर हम ला देते हैं तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूट गाय हैं वो हमारी बच जाएंगी और उनका पेट भी भर जाएगा और लोग उसको यूज करने लगेंगे। इसलिए हमने एक गौशाला ली है, वहां पे समूह की महिलाएं, यानी रूरल जो आजीविका समूह संगठन होता है, उनको हमने जोड़ा और जोड़कर उनको ट्रेनिंग दी। You are talking about self-help groups. राइट, सेल्फ हेल्प ग्रुप। और लगभग 3 समूह हमारे पास में काम कर रहा है, उनको ट्रेनिंग देकर स्टेप बाय स्टेप हम उनको लर्न करा रहे हैं। और नाउ दे हैव लाइक 1 महीने के अंदर दे हैव अर्न लाइक 10,000 रुपीज बाय सेलिंग जीवामृत एंड घन जीवामृत। इसके अलावा वो लोग खुद अपने खाद को अपने खेतों में यूज कर रहे हैं। आज की डेट में प्लांटेशन हो रहा है, हम वहां पे घन जंगल लगा रहे हैं। ये घन जंगल ये होता है कि हम उसमें प्रकृति में हम अपना दिमाग नहीं लगाते, प्रकृति के पास इटसेल्फ हैव एन इंटेलिजेंस। हम केवल उसको एक माहौल दे रहे हैं। मोर देन 150 प्लांट्स हम इन खाद के माध्यम से लगाए हैं। मुझे उम्मीद है अगले आने वाले समय में उस जंगल से हम फल भी लेंगे, फूल भी लेंगे। इसके अलावा जो भी हमारी जरूरत की चीजें हम वहां से लेंगे और वो पानी का एक संग्रह बन गया है। इससे वाटर रिचार्ज भी हमारा हो रहा है और समूह की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन रही हैं और गौशाला भी हमारी आत्मनिर्भर बन रहा है। इस गौशाला के माध्यम से एक मैसेज पास करने की हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग से इस वक्त नाउ वी हैव अटैच लाइक 10,000 फार्मर्स और वी आर ऑन द इनिशिएटिव टू मेक एफपीओ। हम एक एफपीओ बना रहे हैं ताकि इस फार्मिंग के थ्रू हम अपने पूरे विश्व को बचा सकें और विश्व मुक्त भारत बना सकें। जी सर। Very nice, wonderful. And your thought of making a FPO, it's very good because that will be a very good step for the growth of the initiative that you have taken. In fact, I want to go back to when we were small and we were living in the village. This kind of activity was there at that time. Even when the farmers had agricultural land, they had cows, in their bail hote the, गाय होती थी. I mean, not one, many, and with the natural things, आप जो बोल रहे हैं, cow dung and gomutra and all those things was used to be and whatever was there in the cow shed, that used to be the fertilizer
for its natural one, and it was there earlier, but all our chemicals and fertilizer companies spoiled the spoiled the minds of the people, and to have a fast food culture, so fast growth culture was done, and it is right because it has spoiled, or you say poisoned our nature. And what you are doing to bring it back to the previous glory that we had, wonderful work. And thinking of a FPO is a real good thing, because we have interviewed many FPO so that who are doing for the piggery farms in the villages of Karnataka, and form the FPOs. So this is a very good move. Thank you for this information that you have given. And let's go back to your next question. Through free education, how are the students benefited? If any student is in good position through your free education, you can say that. But our viewers would like to know, through free education, how are the students benefited? Is free education necessary? All those things. Can you tell us? All questions are very excellent, and this question is it's mind blowing, क्योंकि फ्री एजुकेशन को लेकर बहुत ज्यादा विवाद है। अक्सर लोग पूछते हैं कि आप फ्री में खाद दे रहे हो, फ्री में आप पढ़ा रहे हो, फ्री में प्लांटेशन कर रहे हो, आप फ्री में गौशाला कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं? तो हमारे साथ जो बच्चे हमारे हैं, जब तक हम उनको चीजें फ्री में नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम किसी हवा का तो पैसा नहीं दे रहे, सूरज की रोशनी का पैसा नहीं दे रहे, हवा का पैसा नहीं दे रहे, बट ये तीन चीजें हमारी जिंदगी चला रही है, तो एजुकेशन भी फ्री ही होना चाहिए, ताकि बच्चे के ऊपर ये बर्डन ना रहे कि मेरे माँ बाप को इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जब बच्चे की चेतना जाग जाती है, कॉन्शियस डेवलप हो जाती है एजुकेशन को, तो वो खुद टीच करता है और लर्न करता है। आज से पहले जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, क्या वो किसी स्कूल या कॉलेज से डिग्री लिए हैं? राइट ब्रदर के पास क्या डिग्री थी सर? एडिसन और हेनरी फोर्ड्स की अगर हम बात करते हैं, इज इट दे आर क्वालिफाइड? क्वांटम साइंस का जो आज की डेट में बहुत ज्यादा क्वांटम फिजिक्स, आप देखिए कि ये कहाँ से आया, कौन है इनके पीछे? हमारे ऋषि जो थे, उनके पास कोई फॉर्मल डिग्री थी क्या? नहीं थी, लेकिन वो अपने यहाँ पे गुरुकुल में बच्चों को फ्री पढ़ाते थे। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं है, हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि आप खुद से कैसे पढ़ सकते हो। लास्ट ईयर का हमारा रिजल्ट ये है कि रासेपुर एक जगह है जियापुर आजमगढ़ में, वहाँ हमारे 250 से 300 बच्चे पढ़ते थे। 12th क्लास में हमारे 15 बच्चे थे, आउट ऑफ 15 10 बच्चों की हमारी फर्स्ट अटेम्प्ट में सरकारी जॉब लग गई। दे आर इन गवर्नमेंट जॉब्स। ऑफ कोर्स ये ग्रेड डी है, बट दे आर इंडिपेंडेंट। अब वो अर्न कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सेम चीज हमने अभी जो नई गौशाला ली है, तमौली गौशाला, जो कि आजमगढ़ में है, और इसको हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम जी ने गोद लिया था। तो उन्हीं के गांव में जाकर मैंने इस गौशाला को लिया, क्योंकि वो बहुत चैलेंजिंग था। वहां पे हम लोग निःशुल्क टीचिंग के माध्यम से बच्चों के व्यवहार बदल रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो हमारे यहाँ पे समूह में महिलाएं काम करती हैं, जिनके हस्बैंड्स नहीं है या उनके पास पैसे की प्रॉब्लम है। जब हम उनको पढ़ाते हैं तो हमें इतनी खुशी मिलती है कि वो बच्चे हमें थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी बोलते हैं। उन बच्चों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, उन्होंने अपने मोबाइल से गूगल स्कैन करके चीजें लर्न करना शुरू हो गए। कल एक बच्चे ने मुझे एक प्लांट स्कैन करके बताया और उसको बताया कि ये जो मशरूम है, ये 2 ट्रीज के बीच में कम्युनिकेशन था। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा कैसे पता चला? कह रहा गूगल स्कैन किया था तो उसमें इंफॉर्मेशन आ गई। तो हम बच्चों को पढ़ा नहीं रहे सर, हम बच्चों को सिखा रहे हैं, और ये सब फ्री है। क्या गूगल आपसे कोई चार्ज करता है? दे आर चार्जिंग फ्रॉम डिफरेंट वे, एडवर्टाइजमेंट, लेकिन उस बच्चे से डायरेक्ट चार्ज नहीं करता। हमें भी आप जैसे लोग हैं जो सहयोग कर रहे हैं, और लगातार हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और टोटली हमारा फ्री है। तो ये हमारा रिजल्ट है सर जी। थैंक यू सर जी, बहुत नेक काम है, बहुत बढ़िया काम है। नेचर खुद सिखाता है सबको, वी लर्न फ्रॉम द नेचर। नेचर इज ए ग्रेट एजुकेटर और एजुकेशनिस्ट। इट्स इन द नेचर दैट एवरीथिंग इज अवेलेबल एंड वी नीड टू लर्न फ्रॉम इट। बहुत बढ़िया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज व्हाई एंड how are you campaigning on tree plantation and water conservation? Definitely,
ये आपके बेहतरीन क्वेश्चंस हैं और मुझे लगता है कि आप मेरे हर एक क्वेश्चन पे काफी अच्छा थॉट है आपका। हम जो फ्री प्लांटेशन और वाटर कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं, मैंने आपको बताया हमने गौशाला ली है, इट्स लाइक इंटीग्रेटेड लर्निंग सेंटर। वहां पे हमने क्या किया कि वहां पे जो जंगली जीव थे जैसे सियार, नीलगाय, मोर, तीतर, बटेर, वन मुर्गियां, ये जंगल में पाए जाते हैं। वो गौशाला गांव के एकदम बाहर सूखी हुई जगह थी, क्योंकि वो जानवर को प्यासे मर रहे थे, गर्मी में घूम रहे थे। तो मुझे थॉट आया कि इसके प्रोटेक्शन के लिए हम चारों तरफ एक गड्ढा करेंगे। तो हमने पूरी वाटर बॉडीज बनाई, लोगों ने आके देखा और सेम इसी की तर्ज पे 2 और नई गौशालाएं बन रही है, सेम इसी एग्जाम्पल के तौर पे। और उसके चारों तरफ हमने प्लांटेशन लगा दिया। आज की डेट में हमारा जो वाटर लेवल है वो बहुत बढ़िया है। ऑफकोर्स अभी बारिश हो रहा है, लेकिन इस गर्मियों में भी रहेगा क्योंकि सारे गड्ढे भर गए हैं। हमने कई पॉन्ड्स बनाए, हमने छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाए हैं और उस पॉन्ड्स के माध्यम से हम पानी कर रहे हैं। अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इस गड्ढे का मतलब क्या है। वहां पे जब वो लोग देख रहे हैं कि एनिमल्स पानी पी रहे हैं, साल भर पानी रह रहा है, तो लोगों ने आके मुझसे पूछा। तो मैंने उनको जब एक्सप्लेन किया तो कई लोगों ने अपने यहाँ पे भी गड्ढों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जो ऑलरेडी गड्ढे हैं उस गड्ढों को पाटने की जरूरत नहीं, आप वहाँ प्लांटेशन कर दीजिए और वो पानी वाटर बॉडीज बन जाएगा। इससे क्या हमारा रेन हार्वेस्ट सिस्टम भी बन जाएगा और जो बारिश का पानी है वो बह के नहीं जाएगा। इस तरीके से पहला कैंपेनिंग तो मेरा वाटर कंजर्वेशन पे हो गया, वो लर्निंग सेंटर हो गया। दूसरा, हम प्लांटेशन की वो सारे टेक्निक यूज कर रहे हैं, जैसे सीड्स फेंकना। हम सब्जी मंडी से जाते हैं, वहां पे आम के बीज रहते हैं, नींबू गारने वालों से नींबू के बीज मिल जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे जंगलों में पेड़ हैं उनके बीज मिल जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे वेस्ट ग्रेन्स है वो ले लेते हैं और कहीं पे भी हमें हमारे घरों में जैसे हम झाड़ते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा सीड्स निकल जाते हैं, वो सीड्स हम कलेक्ट कर लेते हैं एंड मोर देन 120 kg सीड्स हमने अभी तक फेंका है। ये प्लांटेशन का दूसरा तरीका हो गया। इसके अलावा हमने सीड बॉल बनाना शुरू किया। सीड बॉल बनाने का बहुत इजी तरीका है सर। उसमें मल्टीपल सीड्स डालते हैं, जीवामृत, घन जीवामृत और पानी और मिट्टी लेकर उसके बॉल से गोल बनाकर हम उसको सुखा कर रख दिए और मोर देन 10,000 सीड्स हमने बहुत जगह फेंका है। जहां पे भी हमें लगा कि ये जंगल में जाने के लायक है या सूखी जगह, वहां फेंक दिया। जो हमने सीड्स लिए वो फेंका। इसके अलावा ट्री कटिंग्स आते हैं, प्लांट्स के पत्तों से पौधे निकलते हैं, तो हम जहां पे भी जाते हैं उनकी कटिंग्स लेके कलम्स लगा देते हैं। हमने ये प्लांटेशन ड्राइव किया है। आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा कि 2 जुलाई से अभी तक हमने 7,500 पौधे लगाए। लोगों ने पूछा भैया ये क्या पागलपंती है, आप बीज भी फेंक रहे हो हैं, सीड बॉल भी फेंक रहे हो, ये घना हो जाएगा। मैंने कहा लेट द नेचर डिसाइड। हम कौन होते हैं, हम तो अपना प्लांटेशन करते हैं, जो बचेगा वो नेचर अपने आप डिसाइड कर लेगा। इस तरीके से हमने प्लांटेशन ड्राइव किया है। जो रोड के बीच में डिवाइडर्स हैं उसके बीच में हम जो बीच डिवाइडर्स होते हैं लाइक वहाँ पे खाली जगह रहता है, उसके बीच में हम सीड्स डाल रहे हैं और जो कलम्स हैं वो डाल दे रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स एनिमल खा जाएगा, लेकिन कलम जो एक बार जड़ पकड़ लेगा व्हेन दे गेट द रूट्स वो नहीं पकड़ेगा। तो इस तरीके से हम प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं। अब इसमें जो लोग हमको ये काम करते देखते हैं वो लोग अपने आप पूछते हैं भाई ये क्या चीज है। जब हम उनको एक्सप्लेन करते हैं तो दे आर फैसिनेटिंग एंड इसकी वजह से हमारे 5-10 वॉलंटियर्स अभी तक हम रेज कर पाए हैं। इसके अलावा जो मंदिर की जगह है वहां पे हम प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं और हरिशंकरी वन लगा रहे हैं। हरिशंकरी होता है पीपल, बरगद और पाकड़, इनका एक समूह होता है। इस तरीके से हम जो अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पे हर एक चीज हम डाल देते हैं, रोज का रोज अपडेट करके, फेसबुक और सोशल मीडिया का माध्यम से यूज कर रहे हैं। और जैसे हमारा आपका हम कर्नाटका न्यूज है, ये हमारे मीडिया पार्टनर है, ऐसे आजमगढ़ में PR न्यूज है, मीडिया के माध्यम से हम लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपना वाटर कंजर्वेशन और प्लांटेशन हम कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, स्कूलों में, मंदिरों में लोगों को जोड़ रहे हैं सर। ये तक हमारी इनिशिएटिव है। Thank you, Sarji. Rakesh sir, you are doing real good work, and we are happy to be associated with you from News Karnataka. And when we have started a campaign of Village TV, and we are going to the villages through our franchisee network, and naturally you will help us for these particular things what you are doing, even in the villages of Karnataka. I hope you will come with us and give your experience to the villagers of Karnataka also. Let's have a break now, and we'll come back after the break.
At the premium gateway to Mangaluru, one of the premier cities of Karnataka possessing all types of domestic and international connectivity, is a full-fledged commercial complex, the Premier Corner, Nandur, now available to make your dream venture a reality. Each floor is spread across 4,200 square feet to provide a class ambience to your clientele. Adhering to all safety norms, the Premier Corner is all set to be a game changer for any business, thanks to its easy connectivity. Located right beside NH66, Premier Corner has been built in view of futuristic needs with ample space for vehicle parking in 2 basements. The G+3 story building is the right place to start premier ventures like corporate office, vehicle showroom, IT firms, exclusive retail shops, brand outlets, and to add on, a terrace cafe. Come, invest and own this premier space at Premier Corner. Contact +91 81 971 43675 or +91 7676 218101 for a premier business deal. Now tell us more about cow-based zero-budget multi-crop natural agriculture campaign. इनिशिएटिव बहुत बढ़िया है कि पद्मश्री श्री सुभाष पालेकर जी के माध्यम से और लोक भारती के माध्यम से हमको मौका मिला कि हम जीरो बजट बहुफसली प्राकृतिक खेती पे काम कर सके। जीरो बजट का मतलब जो आपका कंज्यूमेबल है। अगर आप एक किसान हैं तो आपके पास जमीन होगी, अगर आप एक किसान हैं तो आपके पास ट्रैक्टर हो सकता है, अगर आप किसान हैं तो आपके पास एक लेबर हो सकता है। जो चीज आपके पास नहीं आता है वो है बीज यानी सीड्स। 2 चीज आप कंज्यूम करते हैं वो पेस्टिसाइड्स और आप फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो जीरो बजट में हम कहते हैं कि आपका अपना खुद का बीज होना चाहिए यानी सीड्स आपके खुद के होने चाहिए, फर्टिलाइजर आपका खुद का होना चाहिए और इसके बाद आपका जो रासायनिक चीजें आप यूज कर रहे हैं उसकी जगह पे जो जिसे कहते हैं फसल नियंत्रक यानी जो फसल को रोकने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये चीज भी आपके पास होना चाहिए। तो जीरो बजट में ये 3 चीजें जो हमें लौट के नहीं आती ये हम इसको जीरो कह रहे हैं। हम ट्रैक्टर, टाली और जमीन और लेबर को जीरो नहीं बोल रहे। हम लोगों को बोलते हैं एक गाय रहे, 1 काव, वो 30 एकड़ खेती कर सकता है। उससे हम जीवामृत बनाते हैं। जीवामृत बनता है मिट्टी, पीपल के पेड़ की मिट्टी, गुड़, बेसन, 200 लीटर पानी और गौमूत्र से, और उसमें हम गोबर डालते हैं। ये 48 आवर्स में तैयार हो जाता है। एक खेत में केवल आपको जीवामृत चाहिए होता है। 1 एकड़ खेत में केवल आप 10 लीटर को 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर दीजिए, आपकी जमीन की शक्ति बढ़ जाएगी। इसी तरीके से जब आपके खेत में पानी नहीं है, मिट्टी गीली है, तो आप घन जीवामृत यूज कर सकते हैं जो कि जीवामृत की तरह ही बनता है। गुड़, बेसन, पीपल की पेड़ की नीचे की मिट्टी, गौमूत्र और गोबर से। ये 72 आवर्स में बन जाता है और इसको सुखाकर आप बोरे में रख देंगे तो यू कैन यूज फॉर 6 मंथ और उसको यूरिया की तरह स्प्रे कर दीजिए। ये आपकी जमीन की शक्ति बढ़ा देता है और आप जब पैसा खर्च नहीं करते हैं तो यानी आप पैसा अर्न कर रहे हैं, क्योंकि पैसा बचाना भी पैसा कमाना होता है। तो मेरे किसानों को हम यही सिखाते हैं कि आप जो जापानीज टेक्निक है और सुभाष पालेकर जी के दोनों को मिक्स कर आप बीज डायरेक्ट स्प्रेड करके अपने खेत का जीवामृत, घन जीवामृत यूज करके अपने खेत की खेती करिए। दूसरा तरीका ये है, जब आप बोलते हैं कि इसमें कीट पतंगों का हमला हो जाता है या जीवाणु इस पे हमला कर देते हैं या फसल सुरक्षा को लेकर, तो इसमें 10 पन्नी यंत्र, ब्रह्मास्त्र, निमास, अग्नियास्त्र, खट्टी लस्सी का इस्तेमाल करके अलग अलग विभिन्न रोगों को रोका जाता है। ये सब आसानी से किसान अपने घर में बना सकता है। तो अब इस नेचुरल फार्मिंग को इस तरीके से हम प्रमोट करते हैं। अगर हमारे देश में एक एक किसान भी अपने घर का 1-1 हजार रुपये भी बचाता है तो एवरी डे हम कितना पैसा बचाएंगे सर। और ये बहुत आसान खेती है। दूसरी चीज, इसमें ज्यादा आपको इंडस्ट्री यानी आपको पेट्रोल यूज करने की जरूरत नहीं है। मेड़ और कतारों पे खेती करते हैं आप और आपका वेस्ट मैनेजमेंट इसमें बहुत बेहतरीन होता है। तो हमारा किसान बिकम ए एंटरप्रेन्योर। हम उनको बताते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रोसेस करो और उसको सेल करो, बट इन ए नेचुरल प्रोसेस। आपको केमिकल यूज नहीं करना है। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, इसके अलावा आप देखेंगे हर जगह श्री नरेंद्र मोदी जी स्वतः ही सब जगह इसको प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो हिमाचल के गवर्नर हैं
वर्त जी, उन्होंने भी बहुत ज्यादा इस पे काम किया। गुजरात तो एक बहुत बेहतरीन मॉडल बनकर उभरा है। उत्तराखंड, हिमाचल जैसे जगहों पे है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और इवन कर्नाटका में भी नेचुरल फार्मिंग को लेके बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो इस तरीके से हम जो है जीरो बजट बहुफसली यानी मल्टी मल्टी फार्मिंग यानी बहुफसली, आप Yes. केवल एक फसल में एक ही ना ले। फसल जो होता है 1 महीने का, 2 महीने का और सबसे आखिरी फसल आप एक खेत में बो देते हैं, आपका लेबर उतना ही रहेगा, पानी भी उतना ही रहेगा और आपको पूरे साल आपको पैसा इनकम आता रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं जीरो बजट बहुफसली यानी जीरो बजट मल्टी फार्मिंग इसलिए ही बोला जाता है। और उससे आप Yeah. फल भी ले रहे हैं, फूल भी ले रहे हैं, सब्जी भी ले रहे हैं और उसके बाद उसका वेस्ट से भी आप पैसा कमा रहे हैं। Right. Right. तो ये है सर मल्टी लेयर फार्मिंग। वंडरफुल। यस, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। इट्स वेरी गुड, पीपल कैन अंडरस्टैंड, दोज हु नो हिंदी, I think they will understand. Most of the people know Hindi. And now coming back to the last question of this program, what is your message to the viewers of News Karnataka? My message to the News Karnataka is that whatever we are doing for the whole earth. We have to save our mother earth. Don't see me like I'm working on water, soil, or air, or thoughts. Think it like a earth, and we all are only one. So I'm working for the earth to save the earth. Please support us to save Mother Earth because we don't have any another option. Thank you, Rakesh Kumar ji, for coming on this show and giving how you are working at Anika and giving information about the zero budget farming and multi-crops, and also on the free education and how the aircraft engineering is useful in social development, and also the natural farming that you are promoting. Very good way that you have explained all these things. So thank you very much for coming for the show, and wish you all the best. And we at News Karnataka will always promote such kind of thoughts and that earn while you learn concepts, which we are also very dear to such things. Wish you all the best and thank you very much. Subscribers, don't forget to subscribe our YouTube channel, News Karnataka, and support us and support Anika Foundation by Rakesh Pandey ji. Thank you, Rakesh ji. Thank you, sir.